Anji, welcome to my maths class. Students, in my last lecture, I explained you how we can reduce the general form of line into the different form of lines. And we had done question number 1, 2, and 3 of exercise 10.3 in that lecture. Let us start with the fourth question of exercise 10.3. It is find the distance of the point minus 1, 1 from the line 12 times of x plus 6 is equal to 5 times of y minus 2. First of all, try to understand this. Whenever we are asked to find out the distance between point and a line, then line must be in the जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होना चाहिए, यानी कि आपके पास लाइन का ये वाला फॉर्म होना चाहिए ax plus by plus c equal to 0. This form of the line must be there. So it is not visible here. तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12x plus this is 72 5y minus 10, then shift everything to this left side ताकि ये equal to 0 फॉर्म में हो. ठीक है, वो भी हमने कर लिया. Now I can find out the distance of this point minus 1, 1, ठीक है, to this line. अब ये आपका perpendicular distance है. This is your perpendicular. जब भी distance की बात की जाती है, it means we are asked to find out point and line के बीच का distance निकालने के लिए बोला है, तो आपको perpendicular distance निकालना होता है. वैसे तो देखो ये point है, ये line है, वैसे तो distances बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब उसने बोला distance means that it is talking about the perpendicular distance, the shortest distance between a point and the line. तो अब जब इसके बारे में बात की तो हम we know the formula. What is the formula? That is distance formula होता है modulus of ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square. तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर a एंड b क्या है. ठीक है, तो इसको करते हैं. इस इक्वेशन में आपके पास देखिए जो भी इक्वेशन थी आपके पास ये है, आपके पास इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन. अब यहाँ पर आपने x एंड दिस y की जगह x1 y1 रिप्लेस करना और कुछ नहीं करना. देखिए ये फॉर्मूला, इसमें मॉड्यूलस लगा दीजिए. आपने सिर्फ x1 y1 और x1 y1 ये है -1 1 -1 1, x1 की जगह आपने -1 रख दिया, देखिए है ना, एंड y1 की जगह आपने 1, यानी कि ये इक्वेशन पूरी की पूरी एज इट इज लिखनी है. बस x will be replaced by x1 and y will be replaced by y1 upon square root of a square plus b square means the square of coefficient of x, that is 12 square, plus square of the coefficient of y, that is -5. ठीक है, you can see okay, what is there now. After this put the values and get the answer. ये आपके पास आया 5 units. And in question number 5, it is find the points on the x-axis whose distance from the line x upon 3 plus y by 4 is equal to 1. देखिए समझिए, पहले आपको बोला है पॉइंट जो आपने फाइंड आउट करना है वो एक्स एक्सिस पर है. ठीक है, सपोज मैं अगर इसको ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये आपकी लाइन है, सपोज दिस इज द लाइन, ये आपकी लाइन है x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1. ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ x एक्सिस पर ये पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपको पता करनी है d, that is given 4 units, that d is given 4 units. और ये पॉइंट x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आई एम कंसीडरिंग दिस लेट इट इज h, 0. ठीक है, h, 0 से, यानी अगर मैं इसको p पॉइंट ले लूं, इसको m पॉइंट ले लूं, तो आई नीड टू कैलकुलेट दिस pm and I will put it equal to 4 because this d equal to 4 given to you, pm is equal to 4 given to me. And I know whenever I have to find out the distance between the point and the line, then the line must be in the standard form, general form of line. तो अभी तो it is not looking in the general form of the line. तो अभी सबसे पहले I am converting it in the general form. ये देखिए इसको general form में यहाँ पर convert करना है. General form में convert करने के लिए LCM लिया हमने. ये देखिए ये इसकी general form आ गई. General form आ गई. आप हमेशा ध्यान रखना है whenever I want to find out
we have to find out the distance between a point and a line. The line must be in the general form. ठीक है जी, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर फ्रॉम द फिगर कि आपका ये आपकी लाइन आ रही है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है और h0 से इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। तो फॉर्मूला हमने लिखा, यानी ये पूरी लाइन हम एज इट इज लिखेंगे, बस x की और y की जगह हम ये h एंड ये 0 से प्लेस कर देंगे, बिकॉज दिस इज योर पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक द डिस्टेंस। ठीक है, आपने पूरा का पूरा ये देखिए h4 की जगह आपने ये 4, फिर x की जगह h लिखा, प्लस 3, y की जगह आपने ये 0 पुट कर दिया, -12 upon a square plus b square. A is your coefficient of h and b is your coefficient of y. तो a and b आप पहले स्पेसिफाई कर लिया करो कि a is your 3 and b is your, what is b, sorry, a is your 4 and b is your 3. ठीक है, ये आपने लिख लिया and we have put the values. हमने इसकी वैल्यूज जब पुट की तो देखिए क्या आया यहाँ पर, ये अच्छा ये अभी आपके पास आ गया। Now we can see here, you can see in the modulus sign, पहले तो आपने 5 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया। In modulus sign there is a variable. Whenever inside the modulus there is a variable, then we open that modulus with the positive as well as with the negative sign. दोनों साइन के साथ इसको हम खोलते हैं। क्यों भाई दोनों साइन क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। h जो है वो इस पूरे, अगर सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, आपको समझ आएगा। 4h minus 12 है। अगर सपोज करो h आपका 3 है, ठीक है, या 3 नहीं, आप सपोज करो मैं इसको लेती हूँ 4, h को मैंने लिया 4, अगर h आपका 4 है, in that case this is 16 minus 12, that is 4 modulus, यानी जो भी आंसर है विद द पॉजिटिव साइन ही ओपन हुआ। लेकिन अगर सपोज करो h आपके पास होता 2, सपोज h इज 2, तो हम इसको 4 into 2 minus 12, यानी कि कितना होता है ये 8 minus 12 minus 4 मॉडुलस। तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस ऑफ -4 खोलते ना, ताकि ये +4 होता। जो भी यहाँ अंदर है उसके बाहर माइनस लगाते, लेकिन यहाँ पर जो भी था वो एज इट इज हमने विद पॉजिटिव साइन खोला। तो जो अगर हमें ये h पता ही नहीं है वेदर इट इज गोइंग टू गिव अस अल्टीमेटली वन वैल्यू विद द पॉजिटिव और विद द नेगेटिव साइन इनसाइड द मॉडुलस, तो हम उसको दोनों साइन लेके उसको ओपन करेंगे। व्हेन वी विल ओपन दिस मॉडुलस देन वी विल ओपन विद द पॉजिटिव एज वेल एज विद द नेगेटिव, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। तो यहाँ पर भी हमने ये देखिए, यहाँ से हमने जब इसको ओपन किया मॉडुलस हटाया तो हमने ये दोनों साइन यहाँ पर लगाए हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एक बारी पॉजिटिव के साथ हमने इस h की वैल्यू निकाली और एक बारी नेगेटिव के साथ, तो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, वन इज 8, द अदर वन इज -2। सो रिक्वायर्ड पॉइंट h, 0 था, तो रिक्वायर्ड पॉइंट मे बी 8, 0 और इट मे बी -2, 0। सो विद दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। हाँ जी, देखिए अब ऐसे एक्सप्रेशन इसमें बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन 3x - 4y + 2 = 0 and this that line which we need to find out the equation, that line is passing through this -2, 3। अच्छा, अभी ये समझे कि whenever two lines are parallel to each other then we can write those lines like this। पहली लाइन सपोज करो है आपके पास ax + by plus c1 equal to 0, and the line which will be parallel to this, that will be ax plus by plus c2 equal to 0। Okay, because in the parallel lines a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो लाइन है, मेरी ये गिवन लाइन दी हुआ है और मुझे जो इसके लाइन पैरेलल निकालनी है, उसमें बस ये जो c है that will be changed। ठीक है, मैंने ये ऐसे कर दिया and now this is my required line, ये मुझे लाइन चाहिए। but I know according to question this required line is passing through the point -2, 3। so this point -2, 3 must satisfy this equation of line। तो
x की जगह -2 रखा, y की जगह आपने 3 रखा. You will get the value of c. Put this value of c here to get the required equation. One more method is here. एक और मेथड भी है जो कि हम यूज कर सकते हैं just to find out this equation of line. क्या है वो मेथड? Let us see. उस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या है कि आपकी गिवन लाइन ये है 3x - 4y + 2 = 0. Its slope is -a/b, that is 3/4. ठीक है. अब इसके बाद यानी कि ये स्लोप आपकी गिवन लाइन की है and it is given that my line which I want to find out that line is parallel to this given line. So slope of my required line will be equal to the slope of this given line because we know that when two lines are parallel then their slopes are equal. क्योंकि रीजन दे देंगे parallel lines have equal slopes. ठीक है. अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे. तो जो मेरी लाइन है जो मुझे फाइंड आउट करना है उसका स्लोप भी इस लाइन के स्लोप के इक्वल है, दैट इज 3/4. बट इट इज गिवन according to the question that required line is passing through the point -2, 3, means it is x1 y1. So equation of the line will be y minus y1 is equal to m into x minus x1 because we know when a point, देखो point भी पता चल गया, slope भी पता चल गया, तो हम one point slope form we can apply. So we'll put the values y minus y1 is 3, m is your 3/4, x minus x1 minus of -2, that is +2. So this is 4y minus 12 is equal to 3x plus 6. So it is 4y minus 3x equal to 18. This is my required equation of line. So it has been done. You can see it, whatever I have explained you, whether it is the same. Let us see. Why this is minus? It must be minus here. It is wrong here. It must be minus here. यहाँ पर ये minus है. आप इसको minus लिखेंगे. Minus है ये यहाँ पर. Okay. This is not plus. It is minus here. Okay. So it's done. And the question number 8 है, find the equation of the line which is perpendicular to this given line and having its intercept is equal to 3. देखिए हमारी given line ये है, ठीक है. तो इस लाइन की स्लोप हम निकाल सकते हैं. देखो पहले मैं थोड़ा सा ये इसको ड्रॉ करके बता दूं कि दिस इज द गिवन, ये लाइन हमें गिवन है. ये लाइन क्या है? x minus 7y plus 5 equal to 0. And I want to find out this line. ये वाली लाइन आपने निकालनी है, ये वाली, और इसका आपको x इंटरसेप्ट 3 दिया है. x इंटरसेप्ट 3 का मतलब है दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3,0, यानी इस लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है मुझे. एंड स्लोप मैं इनडायरेक्टली कह सकती हूँ कि इट हैज बीन गिवन, क्योंकि इफ वी फाइंड आउट दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो आई कैन find out the slope of this line. Suppose ये आपकी लाइन है AB और इसको मैं अगर CD ले लूं, AB and CD are perpendicular. अगर आपने AB का स्लोप निकाल लिया तो आप CD का स्लोप भी इजीली निकाल सकते हैं by taking the negative of the reciprocal of slope of AB. ठीक है. तो वही किया हमने. सबसे पहले AB का स्लोप, इसका जो लाइन है ये, इसको मैंने AB माना है, इसको मैंने इसकी स्लोप निकाला फटाफट से. ठीक है. दैट इज -a/b करके 1/7. नाउ माय लाइन व्हिच इज रिक्वायर्ड CD लाइन, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो वो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? इसका रेसिप्रोकल करके इसका नेगेटिव कर दीजिए, दैट इज -7. ठीक है. m1 * m2 = -1 होता है ना, आपको पता है. तो आपका जब m1 1/7 निकला तो m2 अपने -7 आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज डन. नाउ आफ्टर दिस, अभी नेक्स्ट आपके पास x इंटरसेप्ट 3 दिया है, तो आपका पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, जो हमें लाइन चाहिए उसका पासिंग पॉइंट 30 हो गया. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर कि हमने कैसे इसको 30 लिया. तो अभी दो चीजें चाहिए, दोनों मेरे पास है.
क्या दो चीजें चाहिए थी, क्या दो चीजें अब है हमारे पास। देखिए दो चीजें आपको चाहिए थी, वन वाज योर पॉइंट, द अदर वन स्लोप। आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो y minus y1 is equal to m into x minus x1. Put the value of the slope, put the value of this passing point x1 y1, that is 3 comma 0, and you will get the equation of the line. Next step, find the angle between these two lines. दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो आपको पता है कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan theta. अगर सपोज करो theta is the angle between the two lines, then tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. What are these m1 m2? These are the slope of the two lines, given lines. So we have been given these two lines. So first of all we need to find out their slopes. तो पहले वाली लाइन की स्लोप माइनस ए अपॉन बी यानी कि -√3/1। दूसरी वाली लाइन दी आपको ये, तो इसकी स्लोप माइनस ए अपॉन बी यानी -1/√3। दोनों की स्लोप्स आ गई है। अब हम इन दोनों में यानी m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, we will put these values of m1 and m2 here in this formula to get the equation of to get the angle between these two। हाँ जी, ये देखिए हमने वैल्यूज पुट की हम इस फॉर्मूले में, ठीक है, और हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक, 1/√3। हमने मॉडुलस में यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एट दैट टाइम व्हेन आई एक्सप्लेन यू हाउ व्हाट दिस फॉर्मूला in the derivation of this formula to find out the angle between the two lines. So at that time I explained you that we will take the modulus, means that we will take always a positive value. So 1/√3 आपको पता है tan थीटा कब होता है 1/√3, that is at the 30 degree angle। तो एक एंगल अगर 130, अगर दो लाइंस के बीच में एक एंगल 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरा कितना होगा, 180 minus 30 degree means 150 degree. So it is done. Come to next question number 10. In question number 10, it is given the line through the points x3 and 4, 1 intersects the line this at right angle. समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। इसने बोला है कि ये आपके पास दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन है। मान लो ये लाइन आपकी ए बी है, ठीक है। ये लाइन जो हमारी है वो सपोज करो h,3 और ये है 4,1 से जा रही है, एंड दूसरी लाइन जो है दैट इज दिस इज परपेंडिकुलर। ये कौन सी लाइन है, दिस इज गोज योर CD, एंड व्हाट इज दिस लाइन, दिस लाइन इज 7x minus 9y minus 19 equal to 0। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। वेरी 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 सिंपल, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल है, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी कितना होगा, -1। आप 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए, फिर सी डी में माइनस स्लोप, क्योंकि ये जनरल फॉर्म दिया, जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, -a/b, वो भी निकाल लीजिए, और दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 लिख दीजिए। सो इट विल बी डन। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए कंप्लीट किया, वही स्लोप निकाली है 2 पॉइंट फॉर्म से, और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसलिए m1 into m2 is equal to -1 हो गया। वी पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ द स्लोप्स एंड इक्वेटेड देम एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ h। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या गिवन है कि टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, यानी कि दो लाइंस का कॉमन पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज योर 2, 3 इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो भी दिया है 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। दूसरी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। पहले आप इसकी फिगर को समझिए। क्या है, हमें दिया है कि दो लाइंस हैं, ठीक है, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, और इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। एक तो ये दिया है, और ये दोनों लाइंस जो हैं जिस पॉइंट से पास कर रही हैं दैट पॉइंट इज 2, 3।
अगर सपोज करो ये लाइन मैंने L1 ले लिया और ये लाइन मैंने L2 ले लिया और मुझे गिवन है L1 का स्लोप, फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 गिवन है, m इज इक्वल टू 2, मैं इसको m1 ले रही हूँ, m1 इज इक्वल टू 2 मुझे गिवन है, ठीक है। और जो दूसरी लाइन का स्लोप है m2 दैट इज नॉट नोन, मैंने उसको m ले लिया। देखो मुझे ये L2 की इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, एज पर द क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन L2, और L2 में वन पॉइंट इज गिवन, ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट तो गिवन है, एक पॉइंट गिवन और एक ये स्लोप पता चल जाए, देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब what is given we will make the use of that, we have been given the angle between the two lines, so we will apply that formula। तो अभी सबसे पहले slope of first line m1 is 2, slope of the second line m2 is equal to m, and angle between the two lines that is this, so we know that what is the formula to find out the angle between the two lines, that is tan theta is equal to modulus of 1 minus m1 m2 minus m1 कह लीजिए, चाहे m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, we put the values, हमने इनकी वैल्यूज जो भी निकाली हैं we have put the values, ठीक है, and we will cross multiply it। अच्छा अभी क्योंकि मॉडुलस है, आपको पता है whenever there is a modulus and there is a variable inside the modulus and we remove in that case modulus sign, then what happens, we open it with the two signs positive as well as negative। तो अब हम जो इसको ओपन करेंगे, एक बारी पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे, एक बारी नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे, यानी हमारे पास m की अलग अलग दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी देखिए हमारे पास ये दो, व्हेन आई रिमूव्ड दिस मॉड्यूलस साइन फ्रॉम हियर, तो मैंने प्लस और माइनस दोनों लिए हैं, ठीक है। तो एक बारी प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे इसको हम। तो अभी मैंने इसको माइनस वाले के साथ सेकंड वाले को ओपन किया है, तो ये इधर आ जाएगा, m की वैल्यू ये आएगी आपके पास। अगर आप 1 लेते हैं देन इट विल कम टू दिस साइड और ये इधर जाएगा, तो m की वैल्यू आपके पास ये आएगी, ठीक है। तो m की दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, है ना, एक में आपका ये है और दूसरे में ये है। पासिंग पॉइंट तो एक ही है 2,3, तो आप पहले जब m ये यूज करते हैं और पासिंग पॉइंट ये यूज करते हैं तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी। व्हेन यू विल यूज द सेकंड वैल्यू ऑफ m बट द पासिंग पॉइंट विल रिमेन सेम, देन यू विल गेट द अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो आपको पता ही है, y minus y1 is equal to m into x minus x1, ठीक है। तो आप इसकी कैलकुलेशन यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर कि आपकी क्या आएगी, यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम हियर। सेकंड अगर आपका m ये है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है इसका, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में भी हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, दूसरी फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन थी आपके पास, सो इट इज डन। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम। इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। देखो सीधी सी बात है, हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला दिस लाइन सेगमेंट ए बी, A point is given, B point is given, and this line segment AB is here. And there is the right bisector, the perpendicular bisector of this line segment AB is CD. परपेंडिकुलर का मतलब ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये इसका परपेंडिकुलर भी है और इसको टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी कर रहा है। इट मींस C is the midpoint of AB. C is the midpoint of AB. So first of all, I will find out the midpoint of AB by applying the midpoint formula, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. So this is 1,3. You can see it here. तो हमें इस CD की इक्वेशन निकालनी है, उसमें एक पॉइंट तो पता चल गया, दूसरा हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है आपका क्या स्लोप। तो स्लोप भी we can easily find out, अरे AB and CD are perpendicular, find the slope of AB and CD is perpendicular, therefore m1 into m2 is equal to -1. By applying this formula, by applying this concept, we can find out the slope of CD also. So slope of AB by using the 2-point form, we can find out that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये फॉर्मूला होता है दो लाइंस के बीच में स्लोप निकालने का, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय
द डिफरेंस ऑफ देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गया 1/2 एंड सी डी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो उसका स्लोप क्या होगा इसका रेसिप्रोकल करके इसका साइन चेंज कर दो यानी -2 होगा उसका ठीक है आप ये देख सकते हैं -2 आ गया नाउ न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 क्योंकि उसका सी डी का हमारे पास स्लोप भी आ गया है सी डी का एक पॉइंट कौन सा आया है हमारे पास ये देखिए ये पॉइंट भी आ गया जो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपने निकाला तो यूज दिस इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वेरी इजी this is question number 14 this is very important question in this question it's given that find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1, 3 क्या दिया है कि -1, 3 एक पॉइंट है यहाँ से आपने इस लाइन पर एक फुट सॉरी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सी डी तो ये कहाँ फॉल किया किस पॉइंट पर इसको ये जाकर फॉल किया इस लाइन पर जो आपकी ये लाइन गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 पर कहाँ फॉल किया दैट इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी पॉइंट डी निकालना है आपको पॉइंट डी निकालना है तो इसको ये देखिए कि ये जो लाइन है आपकी ये इस लाइन को अगर मैं L मान लूं ये L लाइन एंड सी डी लाइन दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट डी यानी कि अगर मैं सी डी लाइन निकाल लेती हूँ ए बी तो ये एल लाइन इज ऑलरेडी गिवन सी डी लाइन की इक्वेशन निकाल लेती हूँ फिर एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाल लेती हूँ तो पॉइंट ऑफ डी दिस पॉइंट डी आ जाएगा है ना तो आई विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन लेट अस सी हाउ हाँ जी देखिए अब हमने क्या किया ये लाइन जो ये थी इसका स्लोप -a/b करके निकाल लिया दिस इज 3/4 क्योंकि सी डी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ए बी ये लाइन ए बी के ये हमारी सी डी परपेंडिकुलर है ठीक है तो अब हमारी सी डी की स्लोप क्या होगी इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दीजिए -4/3 आ गई ओके नाउ पासिंग पॉइंट इज गिवन -1, 3 इसका पासिंग पॉइंट क्या गिवन है -1, 3 देखो ये x1 y1 हो गया हमारे पास और स्लोप भी आगे CD की स्लोप भी है और स्लोप CD का पासिंग पॉइंट भी गिवन है तो इट मींस वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ CD y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 करके हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली अब CD की इक्वेशन भी आ गई हमारे पास क्या आई है CD की इक्वेशन हमारे पास 4x + 3y ये वाली इक्वेशन आपकी 4x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0 और AB की भी इक्वेशन है ठीक है तो हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड हम दोनों का निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड आपने निकाला ठीक है कैसे आपने ये देखो यहाँ पर 3y था और इधर क्या है आपके पास ये -4y है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया और इधर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया यहाँ पर तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई इनको आपने सिंप्लीफाई किया तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद x और y की वैल्यू आ गई x की वैल्यू 68/25 और पुट दिस वैल्यू इधर इन दिस इक्वेशन और इन दैट CD किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ गई सो वी गॉट दिस रिक्वायर्ड पॉइंट D ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट D आ गया जो कि आपको निकालना है हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 में द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन y is equal to mx plus c meets it at the point -1 to find the value of m and c तो क्या हमने इसकी फिगर बनाई है कि ये लाइन है आपके पास AB y is equal to mx plus c और ओरिजिन से यानी 0, 0 से अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं दिस इज द परपेंडिकुलर ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया देन इट इज इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट दिस पॉइंट -1, 2 यहाँ पर मिल रहा है अब ये देखिए बेटा अगर हम ये कहें कि ये जो पॉइंट है -1, 2 it lies on this line you will make the use of this also चलिए इससे पहले ये कर लेते हैं कि आपकी CD जो है CD के दो पॉइंट्स गिवन है
CD के 2 पॉइंट्स गिवन है आपके पास, so you can find out the slope of CD y2 minus y1 upon x2 minus x1 by using the 2 point form to get the slope of line. हमने ये निकाल लिया -2 and we know that AB is perpendicular to CD. जो AB है वो CD के परपेंडिकुलर है, इस वजह से जो भी आपकी इसकी CD की स्लोप आई है, AB की स्लोप उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दीजिए। तो आप इसका रेसिप्रोकल करके इसका साइन चेंज कर दीजिए, 1/2 इज द स्लोप ऑफ AB आ गया। एंड स्लोप ऑफ AB तो हमें m गिवन है, तो m की वैल्यू आपको पता चल गई है ना। ठीक है, ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है ये, है ना। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन थी ये, अब इसमें आप m की वैल्यू 1/2 पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, ये आपको देखिए अगर फिगर में आप ये क्लियर है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस सी, अब m की जगह आपने 1/2 पुट कर दिया, यानी y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस सी, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है, -1, 2, इट मींस लाइज ऑन दिस लाइन, देयरफॉर इट मस्ट सैटिस्फाई दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। हमने वही किया, यहाँ पर x की जगह आपका -1 एंड y की जगह 2 पुट कर दिया, तो आपके पास c की वैल्यू भी आ गई, तो c की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई। सो दिस इज आल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इन दिस क्वेश्चन it's given that if P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that this is equal to this. अभी देखिए कि यहाँ पर P is the length of the perpendicular from the origin. I have drawn this line, this equation. देखिए, here it is like this. Because it is given P is a perpendicular length of perpendicular from the origin to the line. Suppose this is my line, okay, and from this origin O to this line the perpendicular distance is P, and we have been given the intercepts on the x-axis and y-axis are A and B. तो मैंने यहाँ पर लिया A, तो ये point क्या आ जाएगा? This point is A, 0 and y-intercept is B, therefore this point will be 0, B. Okay. Now, because this is given, intercepts have been given, so it means we have been indirectly given the intercept form of the line, that is your x upon A upon y upon B is equal to 1. ये हमने लिख लिया. But if we want to find out the distance between, अगर मैं इसको ऐसे, इसकी फिगर को ऐसे दिखाऊं कि 0 0 से ये मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, दिस इज x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1, यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 0 है, ठीक है, दिस इज 0, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p गिवन है, इट इज गिवन p, तो means the distance between the point and the line, that concept will be used here. And I told you, whenever we use this concept of distance between a point and a line, then we will make then we reduce the line in the journal form. But here it is given in which form? It is given in intercept form. So here you can see I have converted this by taking the LCM and then by shifting it to this side, I've converted it into the which form? Journal form. And now this line, अब इस line की equation क्या बन गई है आप देखिए, this has become bx plus ay minus b minus ab, sorry, this is minus ab equal to 0. It has become like this. ये दूसरे वाली आपकी खत्म हो गई और ये वाली फॉर्म आपके पास आ गई है, ठीक है. Now I will apply the distance formula between a point and the line, that is ax1 plus by1 plus c modulus of that and upon square root of a square plus b square. This concept will be used here. Okay. Now we'll put the values, यानी कि यहाँ जो लाइन है उसमें x की जगह 0 and y की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, otherwise it will be written same. ये लिखा हमने, you have obtained this, minus will be absorbed with the modulus as I told you. Okay, now squaring both side, अभी यहाँ modulus लगाइए,
जब आप स्क्वायर करेंगे देन दिस मॉडुलस विल बी रिमूव, क्योंकि स्क्वायर करके भी पॉजिटिव हो जाता है, मॉडुलस आल्सो रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव। तो मॉडुलस जब लगाएंगे यहाँ मॉडुलस रहेगा, इसके बाद आप स्क्वायर करेंगे देन दिस मॉडुलस विल बी removed. Okay, now move ahead, taking the square and then by taking the reciprocal and simplifying this, we can get our required form of relation. And in question number 16, इसमें क्या given है कि आपके पास P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin to the lines. दो lines आपको दी हुई है, एक दिया x cos theta minus y sin theta is equal to k and the other k cos 2 theta, sorry, and the other line is x secant theta plus y cosecant theta is equal to k respectively. Prove that p square plus 4q square is equal to k square. तो देखो यहाँ पर ये पहली लाइन है आपकी x cos theta minus y sin theta. अब मैंने ना यहाँ से ये I have shifted this to the left side, minus k cos 2 theta is equal to 0 and here also this is line. Okay, तो अब हमने क्या किया है, इसको इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से p दिया है, जबकि इस लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से q दिया है. दिस इज गिवन टू यू एंड वी हैव टू प्रूव दिस. तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट में भी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेकंड में भी, और यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं, इधर से q की, एंड वी विल put it on the left side of this equation and let us check whether it comes out to be equal to k square. So here you can see अभी यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया. क्या होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू a x1 plus b y1 and c square root upon square root of a square plus b square. ओके, हमने यहाँ पर आपका x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, we put it here. यहाँ पर भी पुट किया, यहाँ इसमें, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पुट करोगे ना, x भी 0 y भी 0, तो वी आर लेफ्ट विद minus k cos 2 theta divided by square root of coefficient of x plus coefficient of y. उसको किया है, ठीक है, क्योंकि in this particular question what is your a is your cos theta and what is b, फर्स्ट लाइन के लिए अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, what is your b, that is your minus sin theta. ओके, तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट किया, so we have obtained this and we know that square sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो डिनोमिनेटर तो आपका 1 बन गया और यहाँ पर माइनस ऑफ k cos 2 theta आया. अभी लेट इट बी एज इन मॉडुलस ओनली, आप इसको मॉडुलस में रखिए क्योंकि ये मॉडुलस में आपका माइनस तो एब्सॉर्ब हो ही गया खैर नेगेटिव के साथ, स्टिल कीप इट इन द मॉडुलस. अब लाइन 3 जो दूसरी वाली जो आपकी लाइन थी वो क्या थी, दैट इज your x secant theta plus y cosec theta minus k equal to 0. I am writing secant theta as 1 upon cos theta and cosec theta 1 upon sin theta. I will take the LCM and it will become like this. ये बन गया आपके पास, ठीक है. अब इसके बाद आपने इसमें भी 0 0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज गिवन इक्वल टू q, वो q के इक्वल गिवन है. ये देखिए q, और हमने x की जगह भी 0 पुट किया, y की जगह भी 0 किया, क्योंकि आपको डिस्टेंस जो निकालना है दैट इज फ्रॉम 0 0 ओरिजिन से निकालना है. सो आई हैव टेकन दिस एंड यू नो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and this minus will be absorbed with this. अब क्योंकि यहाँ पर रह जाएगा minus k sin theta cos theta, this minus will be absorbed with this. तो q आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ k sin theta cos theta. q क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से q will be equal to k modulus sin theta cos theta. Now we'll put in the relationship. आपको क्या बोला था, p square plus 4q square is equal to k square पुट करना है, ये लेके आना है. तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया p square, तो जब आप p का इसका स्क्वायर करेंगे then the modulus sign will be removed. So it will become k square. Otherwise here it was modulus sign. Okay, so it will be removed. So it is cos k square cos square 2 theta plus 4 and this square लेंगे तो modulus will be removed. K square sin square theta and then cos square theta left hand side. Okay, let us see what happens further.
So k square common. Okay, k square common. Cos square 2 theta, and this can be written as k square. देखो k का भी square है, sin square, cos square. So I can write this 4 can be written as 2 square. So I can write this 2 sin theta cos theta पूरे का square हो गया ना ये. Okay, so it will become like this: cos square 2 theta, and this is the formula of sin 2 theta. So sin square 2 theta, and I know that sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो ये k square into 1, that is k square, and that is equal to your right hand side. Hence it is proved. It is done. हाँ जी स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए कैलकुलेशन जो भी अब मैंने आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, इट इज एग्जैक्टली सेम. Okay, now come to question number 17. 17 में in the triangle ABC with these given vertices A, B and C, these three vertices have been given and you have to find out the equation of the equation भी निकालनी है and length भी निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है. Equation and length of the altitude from the vertex A. Vertex A से यहाँ से ये जो altitude perpendicular यानी आप ड्रॉप कर रहे हो, तो उसकी इक्वेशन भी निकालनी है, फिर उसकी लेंथ भी निकालनी है. ठीक है, तो अभी देखिए जो AD है जिसका मुझे इक्वेशन निकालना, आई नो वन पॉइंट दिस, आई नीड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, and I know this AD is perpendicular to BC. So, and in BC I have been given 2 points. So by using the 2-point form, I will find out the slope of BC. y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो इसकी -1 आई स्लोप, and I know that AD is perpendicular to this. तो AD का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव, so it will be +1. तो AD का मेरे पास स्लोप आ गया +1, and I know the point on this line AD is 2, 3, so I can find out the equation of this line. That is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So this is done. Okay. Now this next part is here you are to find out the distance also. Distance also of this point A from this BC. उसके लिए आपको BC की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. BC की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका इक्वेशन ऑफ BC चाहिए. इक्वेशन ऑफ BC, y minus y1 is equal to m into x minus x1. I know what is x1 y1 here, that is your 4 comma minus 1. So y minus what is y1, that is -1, तो +1 हो गया. m हमने कैलकुलेट किया था BC का, that is -1, and x minus x1, that is 4. So simplify this, y plus 1 is equal to minus x plus 4, so it becomes x plus y. You can write down it like this: x plus y minus 3 equal to 0. This is the equation of the line BC. BC की इक्वेशन मिल गई. अब हम पॉइंट A से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट ax1, यानी कि यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है A, वो आपके पास क्या आया, A क्या आ गया आपके पास, व्हाट इज A, अगर मैं इसका A लिखूं तो A क्या है 1, एंड B क्या है, वो भी 1 है. तो यहाँ पर होता है ax1 plus by1, बस x और y की जगह 2, 3 रखना है. x की जगह 2, y की जगह 3, -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, so this is AD आ जाएगा, this is cancelled, 2 upon square root 2. So your perpendicular distance from this point A to D, this line BC, will be square root 2 units. So this is also done. With this question, your all the sums of exercise 10.3 have been done. So this exercise is now over.